Hello, dear students. Today's topic is post-harvest chemical treatments of fruit and vegetables. It's a very important management practices of post-harvest management because chemicals are generally used for enhancing the shelf life of produce like this fruit and vegetables by mitigating microbial losses as well as physiological losses. And there is a different chemicals like plant protection chemicals, anti-transferants, growth substance, and ethylene absorbents. And first one is the plant protection chemicals. Chemicals used for microbes like fungus and bacteria that major cause for the post-harvest losses of the fruit and vegetables. So, the post-harvest application of fungicides like Millet, Minomyl, Kapton, Diathenium pathalis, etc., and antibiotics like streptomycin have been found effective to prevent the decay caused by the microbes like fungus and bacteria, respectively, during storage of fruits and vegetables. So, first, the application of the binomial in tomato is to prevent the growth of most damaging fungi like rotting in tomato. Dry rot of garlic can be effectively controlled by formalin 0.3%. Black mold in onion also be controlled by dusting of the lime 12 kg or 12 kg per hectare at the cut surface of leaf blade during harvesting, and the dipping of the packed spinach and lettuce means leafy vegetables को डिप कर देना है स्ट्रेप्टोमाइसिन के 1000 ppm सॉल्यूशन में, जिससे उसमें बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट डिजीज नहीं होगा। तो प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स मीन्स हमें डिफरेंट फंगिसाइड एंड बैक्टीरियासाइड्स का उपयोग करना है, एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना है, जिससे हमें माइक्रोबियल लॉस जो भी हो रहा है उसको चेक करना है। सेकंड पोस्ट हार्वेस्ट केमिकल इज द एंटी ट्रांसपेरेंट्स केमिकल। This is one of the most important chemicals that are generally used to close the stomata as they form a thin film over the produce to check transpiration losses. And important chemicals, anti-transparent chemicals are classified into three types. First one is the stomata closing type, second one is the film forming type, and third one is the reflective. स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में मतलब होता है स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है और जो कॉमनली यूज किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसफरेंस। तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट इज द स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। एसिटिक एसिड इज आल्सो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऐसे कि जो प्रोड्यूस के ऊपर फिल्म का निर्माण कर दे, जिससे कि उसमें ट्रांसपरेशन हो ही ना। तो ऐसे टाइप क्या होते हैं, बैक्सेस मोम होते हैं, प्लास्टिक फिल्म्स होती हैं, सिलिकॉन कोयल्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। तीसरा है रिफ्लेक्टिव टाइप, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसमें क्योलिन सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर दो आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, और दूसरा क्योलिन रिफ्लेक्टिव टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। यही तो आपको यूज रखने हैं, यही तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। And now I'd like to discuss about third one is the growth substance or growth hormones. As we know, the physio-biochemical processes remain continue even after harvesting of the produce, which leads to post-harvest deterioration of the vegetables. And these metabolic activities are governed by indigenous plant growth substance, plant growth hormones like auxin, gibberellin, and cytokinins. Hence, the exogenous application of these substances may help to change the metabolic activities and prolong the shelf life of vegetable. कहने का मतलब है कि हमें ग्रोथ हार्मोन सप्लाई करने हैं, क्योंकि तोड़ाई के बाद भी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस चलती रहती है, क्योंकि
वो गवर्न किसके माध्यम से होती है? इंडिजिनस प्लांट हार्मोन्स के, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड के कारण। तो हमें उनको हटाने के लिए अलग से उस पे एक्स्ट्रा डोज देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ हो वो इंक्रीज हो सके। लाइक प्री या पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशन ऑफ N6 benzadenine at the rate 5 to 15 ml effectively retard the process of senescence in coal crops. Oxygen application delays the leaf abscission. Oxygen application delays the leaf abscission of cauliflower. Post harvest application of gibberellic delays the ripening delays the ripening delays the ripening of tomato and LR inhibit the synthesis of solanine in potato. Sorry. इसी प्रकार से ब्रोकली, लेट्यूस, एस्पैरागस की भी शेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ द साइकोसिल। एंड इन द लास्ट 3 स्प्रे ऑफ द मैलिक हाइड्रोजाइड 1000 ppm at weekly intervals inhibit the sprouting of onion as well as in potato also in the storage house। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें ग्रोथ सब्सटेंस हार्मोन्स यूज करने हैं, जिसके कारण उसमें जो भी फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं उसको हम चेक कर सकें, उसको हम रोक सकें। उसके लिए हमें क्या करना है? हार्मोन्स उपयोग करने हैं। इथाइलिन एब्जॉर्बेंट्स, as we all know very well, ethylene is a volatile hormone synthesized in plant parts and eventually emitting during the process of senescence or ripening and act as an autocatalyst for senescence. Ethylene is a autocatalyst for senescence. Senescence मतलब death stage, last stage of the product. So, fast removal of ethylene leads to deterioration of the vegetables. अगर जितने ज्यादा इथाइलिन प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज्यादा उसका डिटोरिएशन प्रोसेस तेज होगी। इसीलिए हमें जरूरत है कि इथाइलिन को हम चेक कर दें। इथाइलिन प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसको हम एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम चेक कर दें, इथाइलिन प्रोडक्शन होने ही न दे। तो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, एब्जॉर्बेंट्स होते हैं लाइक ब्रोमिनेटेड एक्टिव एक्टिवेटेड कार्बन, केमेनोफोर, वर्मिकुलाइट एंड प्यूराफिल। ये जनरली जो भी थाइलिन प्रोडक्शन होता है उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एक और होता है जिसको मैं लिखना चाहूंगा, 1-MCP, एक केमिकल होता है जो ब्रोकली में यूज किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ब्रोकली में इथाइलिन इनहिबिटर का काम करता है, इथाइलिन को इनहिबिट कर देता है, इथाइलिन प्रोडक्शन नहीं हो तो पाता है, जिसके कारण ब्रोकली में एलोनेस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एलोनेस नहीं होता है। तो जितने भी ये जो आपके एब्जॉर्बेंट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका होता है ब्रोमिनेटेड एक्टिवेटेड कार्बन एंड KMNO4, और लास्ट में आपका 1-MCP इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इथाइलिन एब्जॉर्बेंट्स, और एग्जाम में यही पूछा भी जाता है। तो यही हमारे इतने पोस्ट हार्वेस्ट केमिकल ट्रीटमेंट्स थे जिनका हम उपयोग करते हैं जनरली, किस लिए? माइक्रोबियल लॉस को कम करने के लिए, फिजिकल और बायोकेमिकल लॉसेस को कम करने के लिए। थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।